and nursing college, physiotherapy college. So many colleges are there. Honorable Speaker, sir, I take care of all the education institute of Darussalam Education Trust, sir. Sir, you would be surprised, sir, the total fees dues for all these colleges is more than 76 crores, sir. So 76 crores are due from the scholarship. More than 20 crores are due from Arogyashri. 100 crores is due by the government. And still, we do not refuse any patient from getting treated under Arogyashri, nor we refuse any student, sir. Sir, you please tell me, how will an institute, how will a trust survive with 100 crores dues? Sir, I have my heart open for the students, but at the same time, the government needs to realize how will the colleges run if they are not being paid the money. How will they run, sir? Kindly understand, sir. Sir, I know the financial situation of the state. Sir, I would say that we can just have a meeting with all the education institutes, and we can have a roadmap as to how we would be clearing this amount. Let us take 2 years, 2.5 years, but some assurance needs to be given कि installments में आपको देंगे पैसे, करेंगे इसको. Sir, now what is happening? The institute are holding back the certificates of the students who have completed their course. Sir, if they give the certificate, sir, earlier what happened, sir? For the year 2018, all the scholarships were rejected by the BRS government. बोल दिए कि हम ये साल का scholarship नहीं दे रहे, and the colleges had to lose that fees, and the student took the certificates and went away. Recently, Honorable Chief Minister Saab had a meeting with the technical education colleges, management and everything. He spoke to them and he said, don't worry, we will clear all the arrears of 24 and 25. My friend is very intelligent. He said 24, 25. He never said, what about 23? He never said about 22. He never said about 21. He never said about 20 and 18. Sir, Honorable CM, sir, the government is a government, sir. And a decision taken by the government is a decision which today A is there, tomorrow B will be there. It has to be continued, sir. Sir, we have to. Sir, they gave an assurance. The students believed them. The colleges trusted their word. If you say, I have to ask them, where will they get it and give, sir? How will they give, sir? तो ले लेते हैं सर, आप हम कुछ बना. तो ठीक है सर, we will forget Adani, we will go here then. Sir, I request, sir, please, sir, about medical and health, sir. Sir, national health policy says that 8% of state budget should be allocated for health department. As per the World Health Organization requirement, the government has to increase the budget allocation on health to at least 2.5% of GSDP to meet its objective requirement of 3.5 beds per 1,000 people, sir. Sir, this is very important. So, Honorable Speaker, sir, there are some guidelines, sir, which needs to be followed to have a good health care, sir. So, uske liye ye hai, sir, 3.5 beds for 1,000 people, sir. We need to follow these guidelines. Sir, none had followed this guideline, sir. I remember when I was a member of assembly in Andhra Pradesh, sir, then Dr. Y.S. Rajshekar Reddy Saab was the chief minister. He also was a medical graduate. He was an MBBS. He was a doctor. When I spoke to him and I told him what does the World Health Organization requirement says, what are the laid down norms, then he said, Akbar, you're very right. It's very good. Kindly give me that paper. From today, my government will start working on this, sir. So we need to work on this, sir. Sir, like खुदा ना खास्ता अगर फिर से कोविड की जैसी बीमारी अगर आती है, we should not lose life, sir. Life is very precious, sir. I know what life is. I know what life is, sir. जिंदगी की कीमत क्या है मुझे मालूम, sir. I know it. I have seen death, sir, and I came back.
Sir, we have to protect life, sir. Sir, slowly we can start. Increase the allocation in the health sector, and slowly we can go, sir. And we have been demanding and requesting about Osmania Hospital, sir. Sir, Osmania Hospital is the lifeline for the sick and ill patients of whole city. Musi ke us par. Sir, Osmania का कुछ करिए सर. उस्मानिया दवाखाने को बनाइए सर. उसको रिवाइव करिए सर. It's a beautiful structure, sir. मुख्यमंत्री थैंक यू सर. अकबरुद्दीन ओवैसी मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मैं बोलने का ज़रूरी नहीं है. अकबर साहब ने कहा, मगर मेरा अच्छा दोस्त को मैं एक यकीन दिलाना चाहता हूँ. 10 साल गलत दोस्ती करने की वजह से पुराना शहर को एकदम नुकसान हो गया. अब सचमुच सही दोस्त को पहचान लिए, सही दोस्त के साथ चले तो सब कुछ पुराना शहर, ये हैदराबाद शहर, इट इज़ नॉट पुराना शहर, इट्स एन एक्चुअल सिटी, ओरिजिनल सिटी. दिस इज नॉट ओल्ड सिटी, दिस इज ओरिजिनल सिटी. हैदराबाद इज आवर ओरिजिनल सिटी. मगर मेरा दोस्त को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, हैदराबाद मेट्रो जो भी आए, पिछले सरकार जब राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री था, जो बहस हुआ असेंबली में, उसके बाद जो डिसीजन लिए, जो टेंडर बुलवाए, उसमें मेहताज कंपनी कैसे फेल हो गए, उसके आगे दोबारा कैसा टेंडर हुआ, वो पीपीपी मॉडल कैसे सक्सेस हुआ. मैं बोलना चाहता हूँ कुछ जो मिसिंग लिंक्स है, मैं उनसे तकरार नहीं करना चाहता हूँ, मगर रिकॉर्ड में कुछ लोग मेहनत किए, उन लोगों का भी, वो नेता लोगों का भी नाम अपने रिकॉर्ड में आना है. राजशेखर रेड्डी साहब ने ये प्रपोजल कंबाइंड आंध्र प्रदेश से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दिए, मगर वहाँ पर तेलंगाना के शान जयपाल रेड्डी जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने ये पीपीपी मॉडल में वीजीएफ वायबल गैप फंड परमिशन के साथ साथ 1500-1600 करोड़ रुपए वायबल गैप फंड देकर और परमिशन देकर जयपाल रेड्डी साहब ने ये हैदराबाद शहर को मेट्रो ने दिलवाया. राजशेखर रेड्डी साहब ने प्रपोजल किए तो राज्य सरकार से राजशेखर रेड्डी साहब ने प्रपोजल भिजवाए तो केंद्र में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एस जयपाल रेड्डी ने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दे के और वायबल गैप फंड 1600 crores he has given. That is how we have got हैदराबाद मेट्रो. सेकंड थिंग, वो जो पीपीपी में 75 किलोमीटर्स बात हुई थी, जो अग्रीमेंट हुआ था, 75 किलोमीटर्स में एल&टी 69.5 किलोमीटर्स ने पूरी की. गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर वो टेंडर एग्रीमेंट में है. उनके लिए प्रॉपर्टी भी लिए, उनके लिए वायबल गैप फंड भी ले लिए, फिर भी पुराना शहर को मेट्रो नहीं बनाया. मगर तेलंगाना बनने के बाद जो सरकार हुकूमत में थे, वो लोग एल&टी से एडजस्ट होकर वो नहीं बनाए तो भी मत बनाओ, आपको हम पूरा दे देंगे बोल के पिछले सरकार ने जो धोखा दिया पुराना शहर को, वो धोखे के वजह से 10 साल तेलंगाना राज्य में पुराना शहर को ये मेट्रो रेल नहीं मिला. मैं मुख्यमंत्री बनते ही, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है, जरूर वो शहर में मेट्रो रेल बनाने के लिए मैं एमआईएम सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब से और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, दोनों से मैं डिस्कशन कर लेके उसके आगे मैं चंद्रायन गुट्टा में वो जो फाउंडेशन स्टोन जो डालना है वो 5.5 किलोमीटर बनाने के लिए हम एल&टी से बात किए. मगर एल&टी पिछले सरकार जो लीनेंस दिए वैसे ही है, यही सरकार से भी कुछ बोले थे. मैं बोला बाबू देखो ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो चरलापल्ली या नहीं तो चंचलगुड़ा में बैठना पड़ता बोल के मैं एल&टी कंपनी को सीधा सीधा बोल दिए. और बात रहा दूसरी, सेकंड फेज ऑफ मेट्रो, पिछले सरकार ने जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो हाईटेक सिटी से लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट तक 32 किलोमीटर बनाने के लिए टेंडर भी बुलाए. साहब आपको तो पता है, आप वहीं से आए,
हर दिन आपको कॉन्स्टिट्यूंसी को जाना है तो वही आउटर रिंग रोड से वहीं से जाते हैं आप, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी अगल बगल में, आप हैदराबाद शहर में बचपन से आप इधर ही पढ़े लिखे, आप इधर का ही है। जो आउटर रिंग रोड है 500 फीट का रोड है, 8 लेन रोड है, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी से कोई भी अगर एयरपोर्ट को जाना है तो कार में जाते सर, ड्राइवर भी साथ में नहीं जाते, क्योंकि ये जाके गाड़ी एयरपोर्ट में रख दे के फिर हवाई जहाज में कहीं जाकर काम देख लेके फिर वापस आते, गाड़ी लेकर वापस आ जाते। मतलब कोई वहां के कोई गरीब लोग वहां से मेट्रो में एयरपोर्ट को जाने वाले नहीं है, मगर उनके जान पहचान के रिश्तेदारों को जो जगह है रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए वहां टेंडर बुलाया, काम भी शुरू करने के लिए पूरा सब कुछ कर दिए। उनका बदकिस्मती है कि राज्य में कांग्रेस सरकार आ गई, आते ही तुरंत मैं रिव्यू किया, भाई किस लिए जुबली हिल्स वाले को, बंजारा हिल्स वाले को, हाईटेक सिटी वाले को 8 लेन रोड है, बड़ा बड़ा सड़क है, गाड़ियों में एयरपोर्ट को जाने वाले को मेट्रो का जरूरी नहीं है, पहले वो टेंडर रद्द कर दो, क्योंकि ये मास ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड वाइड कैसे बनाए, जो ज्यादा लोग ट्रैवल करते, ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, गरीब लोगों को ट्रैवल करने के लिए ये मास ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन। आप जुबली बस स्टैंड से लेकर देखो, जुबली बस स्टैंड, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, जहां जहां ज्यादा लोग फिरते वहां पर मेट्रो रहना, वहां से एयरपोर्ट को जाना, ये लोग नहीं बनाए, क्योंकि उन लोगों का इरादा ही अलग है। इसीलिए हम लोग आते पूरा मेट्रो का रीडिजाइन करवा के, जो नागौल से जो एयरपोर्ट को जाने वाले को, नागौल से एलबी नगर से ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल से चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड से सीधा एयरपोर्ट को दिए। अगर यहां से गए तो 32 किलोमीटर से, चंद्रायन गुट्टा से अगर आप मेट्रो बनाए तो 16 किलोमीटर है। दूसरी बात रहा गौलीगुड़ा बस स्टैंड से हम लोग फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा, क्योंकि वो जंक्शन बना रहे, चंद्रायन गुट्टा से राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर कॉलेज, क्योंकि वहां पर हाई कोर्ट भी बना रहे, लोग गरीब लोग गांव से कहीं कोर्ट को आने के लिए रहा तो भी वो ओल्ड सिटी में, वहां पर भी हम मेट्रो दिए, और एलबी नगर से हम लोग हैतनगर तक दिए, और हम लोग चंदा नगर से कुकटपल्ली से आगे वहां से BHEL रामचंद्रपुर तक हम लोग मेट्रो नया प्रपोजल दिए। और उसके अलावा भी हाईटेक सिटी से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर अमेरिकन काउंसिलेट है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो कोकापेट में जो नया शहर बन रहे, जो वहां पर जो गंडीपेट के जो बड़े बड़े बंगले आ रहे हैं ना, वहां तक हम एक्सटेंशन की, ये सब नियोपोलिस, तो वहां तक भी हम लोग मेट्रो बनवाए। ये सब मिलाए तो 78 किलोमीटर फेज 2, ये 78 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ केंद्रीय सरकार को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी भेज चुके हैं, अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे हैं। उसमें हमारा दोस्त का एक ही शक है कि कौन बनाने वाले, पैसे कहां से आएंगे सर। इसीलिए जॉइंट वेंचर JV model between central and state government, this is point number 1. The agency is going to take up this work, joint venture with government of India and as well state government. उसमें 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, 35% स्टेट ऑफ तेलंगाना के शेयर है, और 45% लोन आउट ऑफ FRBM, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बार ये मान लिए तो FRBM के अंदर ये लोन नहीं आएंगे, और 5% PPP मॉडल, ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं। अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए, अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा। मैं वादा कर रहा हूं, अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो, आपके चंद्रायन गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रायन गुट्टा में कांग्रेस, ओबीसी को आपको ज्यादा प्यार है, ओबीसी के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्राज कम्युनिटी को चंद्रायन गुट्टा से। मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को
चंद्रायन गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरे कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहां पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। इसीलिए ये जो गौलीगुड़ा से फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा तक 2675 करोड़ से मेट्रो बनने वाले, हम लोग जल्दी से ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन काम शुरू हो गए, पैसे भी दिए साहब को। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन सारा अकबर साहब को मैं दूंगा। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गए, 2675 करोड़ से गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर का जो मेट्रो बनाना है मेरी जिम्मेदारी है। बीइंग एन MAUD एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, मैं उनको वादा कर रहा हूं आपके सामने मैं मेट्रो रेल बना के दिखाऊंगा। धन्यवाद सर। अकबर साहब।